پروگرام کے لیے تعاون کیا ہے۔ پنجاب میڈیکل فیکلٹی لاہور سے الحاق شدہ شفا انسٹیٹیوٹ آف الائیڈ ہیلتھ سائنسز باغ، ریڈیالوجی، میڈیکل لیبارٹری ٹیکنالوجی، ڈسپینسر اور OTA میں داخلے جاری ہیں۔ آخری انٹری ٹیسٹ 11 جنوری 2021۔ سائنس مضامین کے ساتھ میٹرک میں کم از کم 45% نمبرات کے حامل طلباء و طالبات داخلے کے اہل ہوں گے۔ شفا انسٹیٹیوٹ آف الائیڈ ہیلتھ سائنسز باغ، نزد الشفا ہاسپٹل، زمان چوک، باغ آزاد، کشمیر۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں چودھری امان اللہ مانی KDA نیوز کے ساتھ۔ ناظرین، پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے بلین ٹری سونامی جو ہے وہ اس کا پروجیکٹ جاری ہے، اور آزاد کشمیر کے اندر بھی بلین ٹری سونامی کے حوالے سے اس کا آغاز گزشتہ برس ہو چکا تھا۔ بلین ٹری سونامی کے زیر اہتمام پورے آزاد کشمیر میں درخت لگائے گئے۔ بلین ٹری سونامی محکمہ جنگلات اور جو محکمہ جنگلات آزاد کشمیر ہے اور پاکستان گورنمنٹ ہے ان کے درمیان معاہدے کے تحت یہاں پہ آزاد کشمیر کے اندر بلینز ٹری یہاں پہ لگانے تھے آزاد کشمیر کے اندر۔ اس حوالے سے محکمہ جنگلات نے یہاں پہ مزدور جو ہے وہ ڈیلی ویجرز جو ہیں وہ دہلی دار مزدور جو ہیں ان کے ساتھ معاہدہ کیا اور ان کو یہ درخت لگانے کا منصوبہ تھمایا گیا۔ تقریباً اپریل کے بعد یہ جو سارے میرے ساتھ لوگ موجود ہیں یہ ان ڈیلی ویجرز کے ٹھیکیدار ہیں جنہوں نے یہ ٹھیکے لیے تھے، اور انہوں نے پورے آزاد کشمیر کے اندر بلین ٹریز جو ہیں وہ یہاں پہ لگائے ہیں، اور بلین ٹری سونامی کے حوالے سے پورے آزاد کشمیر کے اندر انہوں نے درخت لگائے ہیں۔ یہ جو سارے لوگ موجود ہیں ان کو اپریل کے بعد ابھی تک کوئی رقم جو ہے وہ ملی نہیں ہے، اور ان کے تقریباً 6 لاکھ سے لے کے 15 لاکھ تک کے فی جو ٹھیکیدار ہے اس کے پیسے جو ہیں وہ محکمہ جنگلات آزاد کشمیر اور ان کے پاس یہ بقایا ہیں۔ یہ لوگ سراپے احتجاج ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ دفاتر کے چکر لگا رہے ہیں اور پوری جگہ پہ جا رہے ہیں۔ ہم ان سے جانتے ہیں کہ ان کا بنیادی طور پر موقف کیا ہے اور ان کو یہ پیسے کیوں نہیں مل رہے۔ جی، یہ جو بلین ٹری سونامی ہے یہ آپ کا اور کس کا معاہدہ تھا درمیان میں؟ سر، یہ ہمارا اور یہ جنگلات والوں کے درمیان میں معاہدہ تھا۔ جنگلاتی تجدید باغ، انہوں نے ہم سے مزدور مانگے تھے تو ہم نے ان کو دیہڑی پہ مزدور دیے تھے، تو تقریباً 5-6 مہینے ہم نے مزدوری کی۔ اس کے بعد 7 مہینے گزر گئے تو ہمیں کوئی پیسے ابھی تک بل نہیں ہوا ہمارا۔ 7 ماہ ہو گئے آپ کو کوئی بل نہیں ملا۔ کیا آپ جنگلات کے دفاتر میں آئے ہیں یا نہیں آئے؟ سر، ہم وزیر جنگلات کے پاس بھی گئے ہیں، جنگلات میں بھی آئے ہیں، ڈیافو صاحبان کے پاس بھی گئے ہیں، تو اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں وفاق پیمنٹ نہیں کر رہی، اس کی وجہ سے ہم آپ کے بل نہیں دے سکتے۔ جب تک وفاق پیمنٹ کرے گی ہماری تو پھر ہم آپ کو بل ادا کر دیں گے۔ آپ کے کتنے پیسے اس وقت جنگلات کے پاس ہیں؟ سر، میں نے ڈسٹرکٹ باغ میں کام کیا ہے تو میری تقریباً 4-5 جگہ پہ نوید موسیٰ صاحب رینج افسر جو ہیں ان کے ساتھ میری لیبر تھی، 5 جگہ پہ میں نے کام کیا۔ ہر ایک لیبر کا 5-6 لاکھ میرا جو ہے نا بنتا ہے۔ اس طرح تقریباً 15 سے 20 لاکھ میرا جو ہے نا ان کی طرف بقایا جاتا ہے۔ آپ کتنے مزدور آپ کے ساتھ ہیں اور وہ کب سے ان کا چولہا ٹھنڈا ہے اور کب سے ان کو تنخواہ نہیں ملی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ساتھ 50 سے 60 مزدور تھے۔ ہم نے اپریل سے لے کر یہ جو پچھلے سال جو ہے نا پلانٹیشن ہوئی ہے اس میں کام کیا ہے، تو عرصہ 7 ماہ گزرنے کے بعد بھی ہمیں ادائیگی نہیں ہو سکی، اور جو غریب بے بس اور اس مشکل دور، مہنگ پائی کے دور میں اور اس کرونا کے حالات میں لوگ بے بس ہیں، تو بالکل فاقہ کشی کی حالت میں ہیں اور سراپا احتجاج ہیں۔ ہم بھی کبھی اخباروں کی زینت بنتے ہیں، کبھی دفتروں کے چکر لگاتے ہیں، تو کہیں سے کوئی بہتر جو ہے نا مثبت کوئی حل نہیں آیا۔ تو ہماری آپ سے اپیل ہے پاکستان گورنمنٹ سے، آزاد کشمیر گورنمنٹ سے، کہ ہماری یہ ادائیگی کو ممکن بنائے۔ یہ جو آپ کی ادائیگی ہے یہ آپ کا معاہدہ تو محکمہ جنگلات آزاد کشمیر سے ہوا ہے، کیا آپ ان کے آفیشلز کے پاس گئے ہیں اور ان سے جا کے آپ نے موقف لیا ہے؟ جی، ہم نے اپنے ڈیافو حضرات، کنزرویٹر صاحبان، وزیر جنگلات کے پاس ہم گئے ہیں، تو ان سے ہم نے اپنی جو فریاد تھی وہ رکھی ہے۔ آپ کے کیا تفضات ہیں اس بلین ٹری سونامی کے حوالے سے؟ سر، میں نے فارورڈ کوٹا
ज़िला में काम किया। 40 से 45 मज़दूर मेरे साथ काम कर रहे थे। डियाफू मुफस्सर गिलानी साहब और रेंज अफसर अब्दुल मनाफ कियानी साहब हैं। 6-7 माह गुजरने के बाद भी हमें मजदूरी अदा नहीं की गई। तो हम मीडिया के ज़रिए तवस्सुल से ये अपील करते हैं, हुकूमत से अपील करते हैं कि हमारे मुतालबात फ़ौरन जल्द अज जल्द हल किए जाएँ। तकरीबन टोटल कितने मज़दूर हैं, कितने ठेकेदार हैं और कितने मज़दूर हैं जो वाजिबुल अदा जिनकी रकम है? ये क्योंकि अगर 60 मेरे हैं तो 60 इस भाई के होंगे, क्योंकि उन्होंने अलहदा काम किया है, तो 60 इस भाई के होंगे और 40-50 इस भाई के होंगे। तो ये तो तकरीबन 300-400 लेबर के करीब भी ये अफराद बनते हैं। इन 300-400 लेबर्स को पिछले 7 माह से कोई तनख्वाह नहीं मिली, तो क्या आपने अपने पास से उनको रकम दी या वो बेचारे इस वक्त इंतज़ार में हैं, क्या है वो? हस्बे इस्तिताअत जो हमारे पास था, जमा पूंजी थी, तो ये तो हमने उनकी मज़लूमियत देख के उनको दे दी है थोड़ी बहुत ही, तो ओवरऑल हमने उनको कुछ नहीं दिया। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? इस हवाले से तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम भी इतने कोई अमीर तरीन आदमी नहीं हैं जो अपनी जेब से किसी मज़दूर को दे सकें। हम भी मज़दूर के बराबर ही हक़ रखते हैं। सिर्फ इंचार्ज थे कि इनकी देखभाल, हम मज़दूरी काम पे लगाना हमारा ये जो फ़र्ज़ था महकमे की तरफ से उन्होंने दिया हुआ था, सौंपा हुआ था काम हमें कि इनको काम पे लगाना है, कैसे लगाना है, किधर काम करवाना है, किधर नहीं करवाना, ये हमारा हक़ था। बाकी हम इतने अमीर तरीन नहीं हैं कि हम अपनी जेब से मज़दूरों की पेमेंट कर सकें 10 से 15 लाख रुपये। अगर हुकूमत आज़ाद कश्मीर या हुकूमत पाकिस्तान आपको पैसे नहीं देती तो आपका अगला क्या लाएअमल होगा? हम तो ज़ाहिर सी बात है कि हम तो एहतजाज करेंगे और दफ्तरों का घेराव करेंगे। जब तक हमारी पेमेंटें नहीं होती हम तो दफ्तर में किसी को नहीं आने देंगे। क्या आप किसी धरने की तरफ जा रहे हैं, किसी एहतजाजी मुजाहरे की तरफ जा रहे हैं? क्या आप अपने मज़दूरों को लेके कहीं पे बैठेंगे? क्या करेंगे आप लोग? इंशाल्लाह सर, अगर हमें ये पेमेंट जल्द ना मिल सकी तो हम अगला राय अमल जो है ना फिर इख्तियार करेंगे। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अभी हम चलते हैं महकमा जंगलात के ऑफिसर की तरफ। महकमा जंगलात से मौक़िफ़ लेते हैं कि उनका इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं फॉरेस्टर इम्तियाज़ साहब। ये फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट गार्ड आज़ाद कश्मीर के जो ऑर्गेनाइजेशन है इनके चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं, और इनसे हम जानते हैं कि ये बिलियन ट्री सुनामी के हवाले से लोगों के तफ़ज़ात हैं, जो इनके वर्कर्स हैं उनके तफ़ज़ात हैं, इनके बारे में इनका क्या ख़्याल है। ये जो बिलियन ट्री सुनामी लगाई जाने का जो मंसूबा स्टार्ट हुआ था, तो इस हवाले से महकमा जंगलात और जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है इसके दरमियान में क्या तनाज़ा है कि जो मज़दूरान हैं उनको अभी तक तनख्वाहें भी नहीं मिली और जो उनके साथ तयशुदा मामलात थे वो हल नहीं हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मौनी साहब, सबसे पहले आपका कि आप हमारे पास तशरीफ़ लाए, आपने इन मज़दूरों की आवाज़ को आपने ताकत बख्शी और आप मीडिया के थ्रू हमारे पास तशरीफ़ लाए पे, तो इस पर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। गुजारिश ये करूँ कि मैं इस वक्त बायसीत फॉरेस्टर महकमा जंगलात आज़ाद कश्मीर की तो तंजीम है फॉरेस्टर फॉरेस्ट गार्ड एसोसिएशन, उसका मरकज़ी चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हूँ आज़ाद कश्मीर में। मेरे साथ मेरी तंजीम के ज़िली सदर हैं चौधरी मोहम्मद बशीर साहब और ज़िली जनरल सेक्रेटरी हैं सरदार आबुद साहब, और हम 2-4-6 लोग आपके साथ बैठे हुए हैं। ये सुबह से मज़दूर हमारे पास आए हुए हैं और इन्होंने आपसे आकर रिक्वेस्ट की कि आप हमारी बात करें, अरबाब इक़्तिदार तक हमारी बात पहुँचाएँ। हमने इनको जो असल सूरत हाल है, जो हमारे इल्म के मुताबिक जो बात हमें अपने इल्म के मुताबिक जो मुनासिब समझे थे, हमने इनसे शेयर की। उसमें मैं आपसे गुजारिश करता चलूँ कि गुज़श्ता साल 1.5-2 साल से आज़ाद कश्मीर और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान एक मामला चल रहा था कि आज़ाद कश्मीर के अंदर बिलियन ट्री सोनामी को लॉन्च किया जाए। उस पर हमारे वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा मोहम्मद फ़ारूक अदर खान साहब ने, हमारे वज़ीर जंगलात सरदार मीर अकबर खान साहब ने बड़ी एफ़र्ट्स करके इस प्रोग्राम को आज़ाद कश्मीर के अंदर लॉन्च करवाया। इसमें मैं ये गुजारिश करूँगा कि हमारी सिंध, बलूचिस्तान, KP की और पंजाब से ज़रा मुख्तलिफ नौइयत हमारी स्टेट की कि अल्लाह ताला ने ये खूबसूरत रियासत हमें दी हुई है। इसके अंदर जो ज़रख़ेज़ मट्टी है, जो ज़रख़ेज़ आबो हवा है, पानी है, इसके मौसमियात हैं, ये सारे फैक्टर जो हैं वो आज़ाद कश्मीर की ख़ास करके दरख्तों के हवाले से इसकी अफजाश के लिए अहम किरदार अदा करती है। हमारी ये मट्टी, हमारे वज़ीर जंगलात ने बड़ी कमाल मेहरबानी से हमारे उस वक्त के मुख्तलिफ CCF साहिबान जो अपने अदवार में मौजूद थे, और बिलखुसूस सैयद ज़ौहर गिलानी हमारे सेक्रेटरी फराज थे, उनकी अनथक मेहनत से, और उसमें मेरी मरकज़ी तंजीम का भी बड़ा किरदार है। हमारी दावत पे आमीन असलम साहब को हमने मुज़फ़्फ़राबाद में लाया, हमने उनसे ये सारी बात रखी, तो हमें ये प्रोग्राम मिला 4 साल के लिए कि बिलियन ट्री सोनामी को, जिसमें
19 کو 1 जनवरी 2019 से हमारे ये काम काज शुरू हुए आज़ाद कश्मीर के अंदर, और उसके अंदर हमें फंडिंग मिली अप्रैल मई तक जो काम हुए। उसके बाद हमने हुकूमत पाकिस्तान की हदायत पर हमारे महकमा जंगलात को ये हदायत हुई कि आप मज़ीद पौधे तैयार करें और नर्सरियों में आप वो पौधे तैयार करें। महकमा जंगलात आज़ाद कश्मीर ने पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर लोगों की ज़मीनें जो बल्ले सेट थी या उन पर रेंट पे हासिल किया, वहाँ हमने पौधे तैयार करवाए। इस वक्त ज़िला बाग में मेरा ज़ाती इल्म के मुताबिक सिर्फ ज़िला बाग में हमारी ये मुंगबजरी से लेकर कादराबाद और राड़े तक, बल्कि ऊपर छत्तू हमारी जो नर्सरी है वहाँ तक जो है ये तकरीबन 40 लाख के करीब हमारे पौधे तैयार हैं। अच्छा, 40 लाख। अब आप खुद अंदाज़ा लगा रहे हैं कि 40 लाख का जो पौधे तैयार हैं, 40 लाख की तादाद में, उस 40 लाख को पौधा तैयार करने में कितनी इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट ने की है। उसके बड से लेकर, उसकी रेत से लेकर, उसकी गोबर से, मिट्टी से लेकर ये पौधा इसी तरह तैयार होता है जिस तरह एक बेटा बेटी की आदमी तैयारी करता है, उसकी नशरमा करता है, इसी तरह हमारे पौधे का भी यही प्रोसेस है। वो सारे पौधे तैयार हुए और फिर मानसून में हमारी प्लांटेशन हुई। ये जो मानसून का सीज़न गुजरा उसमें पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर मानसून की प्लांटेशन हुई, और हमने जो काम करवाया थ्रू मजदूरान से करवाया कि प्रोजेक्ट के अंदर, तो वो सारे मजदूर जो है उन्होंने काम किया, लेकिन आज 7 माह हो गए, किसी एक मजदूर को भी जो है वो उजरत नहीं मिली इस काम की। अब नो उजरत, एक तरफ तो हमारी पूरा पाकिस्तान जो है वो सारे कोरोना की वजह से उसकी जद में है, पहले से हमारी बेरोज़गारी फैक्टर जो है कोरोना की वजह से उरूज पे है। अब दूसरी तरफ जिन लोगों ने काम किए हुए हैं, जो मजदूर है, दिहाड़ीदार तबके का बंदा है, उसने जो काम किया हुआ उसको अपनी उजरत अगर नहीं मिल रही है तो वो तो सरापा एहतजाज है। इस पे महकमा जंगलात आज़ाद कश्मीर ने कोई किरदार अदा किया है क्या? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के महकमा के दरमियान कोई कोऑर्डिनेशन है या नहीं है? मैं इस पे फिर ये बात अर्ज़ करता चलूँ कि हमारे महकमे के जो ऑफिशल्स हैं, जिनमें चीफ कंजर्वेटिव डेवलपमेंट हैं, इस तरह PD डेवलपमेंट हैं और सेक्रेटरी ज़ोहर गिलानी साहब हैं, और हमारे वज़ीर जंगलात ने लेटेस्ट जो है आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से मकतूब लिखा हुकूमत पाकिस्तान को, जिनमें वफाकी वज़ीर अमीन असलम है, या अमीन असलम साहब हमारे वफाकी वज़ीर मौलियात के, और हमारी मौसमी क्लाइमेट चेंज की वफाकी वज़ीर मोहतरमा ज़रताज गुल साहबा कि उन्होंने ये बात लिखी है कि हमारे पौधे ज़ाया हो रहे हैं जिनका कोई पुरसान हाल नहीं है, और मज़ीद लोगों की जो है वो डिमांड है कि हमारे ये पौधे इस साल शजरकारी महकमा जंगलात बिल्कुल सिफर से ही नहीं कर पाएगा अगर हमें फ़ंड ना मिले। तो जो कहने का मकसद है कि जो पौधे नर्सरियों में मौजूद है वो भी ज़ाया हो रहे हैं, जिन लोगों ने काम किया उनकी उजरत भी नहीं मिली, और मालिक ज़मीन जो कहते हैं कि वो नर्सरियाँ खाली करो, हमें मतलब है ये, अब वो नर्सरी अगर खाली होंगी तो वो हम पौधे किधर रखेंगे। महकमा जंगलात अपने तौर पर बेबस है, लेकिन हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने जो है वो स्ट्रांगली जो है वो मौक़िफ़ अपनाया हुआ है कि ये लोगों को उजरत, और इस वक्त मेरे इल्म के मुताबिक 1 अरब 25-26 करोड़ रुपए की पेंडिंग लाइबिलिटीज़ हमारी हुकूमत पाकिस्तान में, जिनमें वफाकी वज़ीर मौलियात और वफाकी वजारत मौसमियाती तब्दीली के दफ्तर में हमारी फ़ाइलें ज़ेर कार हैं। पैसे वहाँ से नहीं मिल रहे हैं, और हुकूमत आज़ाद कश्मीर जो है ख़ास करके महकमा जंगलात जो है वो बेबसी का किरदार अदा कर रहा है। हाँ, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मज़दूर की मज़दूरी पसीना खुश्क होने से पहले अदा की जाए, लेकिन महकमा जंगलात और वज़ारत माहौलियात और वज़ारत क्लाइमेट चेंज पाकिस्तान के दरमियान कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से ये जो मज़दूर हैं, ये तकरीबन 10,000 के करीब मज़दूर हैं जिनको हायर किया गया था प्लांट्स लगाने के हवाले से। इन 10,000 मज़दूरों को पिछले 7 माह से तनख्वाह नहीं मिली, और इन 10,000 मज़दूरों के जो ख़ानदान हैं वो फाका कशी का शिकार हैं। एक तरफ तो कोरोना लॉकडाउन है, कोरोना वायरस है, तो दूसरी तरफ ये जो मज़दूर हैं ये बेचारे अपना जो जायज़ हक़ है वो लेने के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं, ये ख़ुद सोजी करने पर मजबूर हैं। ये मज़दूर जो हैं ये अपना जो हक़ है वो लेने के लिए कभी एक जंगलात के ऑफिस में आते हैं, कभी वजारत के पास जाते हैं। आगे से चूँकि कोऑर्डिनेशन नहीं मौजूद महकमा जंगलात और उसके महकमा जंगलात आज़ाद कश्मीर ने भी अपना मौक़िफ़, जैसा कि आपने सुना कि इन्होंने भी पाकिस्तान हुकूमत के दरमियान ये बात पहुँचा दी कि पाकिस्तान हुकूमत के जो लोग हैं वो इनको पैसे नहीं दे रहे, और पाकिस्तान हुकूमत के जो ज़िम्मेदारान हैं वो इस वक्त तक पैसे नहीं दिए। इसके अलावा इस टाइम पाक के अंदर 30 से 40 लाख ऐसे प्लांट्स मौजूद हैं जो नर्सरियों में मौजूद हैं, लेकिन महकमा जंगलात को फ़ंड ना होने की वजह से वो इस वक्त ख़राब हो रहे हैं। चूँकि 15 दिसंबर के बाद महकमा जंगलात जो है वो उन पौधों को निकाल के वापस
جو ہے وہ جنگلات کے اندر لگاتا ہے، لیکن ان نرسریوں میں موجود جو درخت ہیں وہ اس وقت تک وہیں پہ پڑے ہوئے ہیں۔ محکمہ جنگلات کو حکومت پاکستان کی طرف سے فنڈنگ نہیں ہو رہی کہ وہ ان جو درخت ہیں ان کو جا کے کہیں پہ پراپر جگہ پہ لگائیں۔ اس حوالے سے جو آزاد کشمیر حکومت ہے، اس کے محکمہ جنگلات کے جو وزیر ہیں، انہوں نے ایک مکتوب بھی اسٹیٹ کو لکھا ہے، اسٹیٹ پاکستان کو، لیکن اس وقت تک کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ اب محکمہ جنگلات اور حکومت پاکستان کے درمیان میں کیا مذاکرات ہیں، اس حوالے سے جو ہے یہ نہ ان مزدور جانتے ہیں اور نہ ہی مزدوروں کے بچے جانتے ہیں۔ ان کا چولہا ٹھنڈا ہے۔ حکومت آزاد کشمیر کو چاہیے، حکومت پاکستان کو چاہیے کہ یہ جو مزدور بیچارے بھوکے مر رہے ہیں، ان کے لیے جو ان کی جو پراپر ان کی جو تنخواہ ہے، جو ان کے ساتھ طے شدہ معاملات ہیں، ان کو طے کیا جائے، وگرنہ ان مزدوروں کا کہنا ہے کہ یہ خود سوزی بھی کریں گے اور مختلف جگہوں پہ احتجاج بھی اپنا ریکارڈ کرواتے رہیں گے۔ KDI نیوز اسی طرح ہر طبقہ فکر کی جو موقف ہے، جو رپورٹ ہے، وہ آپ تک کرتا رہے گا۔ دیکھتے رہیے KDI نیوز۔ جی